शुरू करें। Very good morning, dear students. Myself is Neha Raghuvanshi, and welcome here once again on the official YouTube channel of Harda Degree College. Today I'm here to discuss the another very important topic of your syllabus. Actually, this class is for all the second year students, in which your syllabus, the conjunctions, okay, and the types of the conjunctions it had given in your syllabus. So today in this class, we are going to discuss the types of the conjunctions. Clear? Actually, as you know that in our previous class, okay, we have already seen the basic introductions of the conjunctions. जिसमें मैंने आपको conjunctions के बारे में बताया था. I had given a very brief and small introduction to understand what are the conjunctions actually, how to use it in the sentence, what is the meaning of the conjunctions. So all we have seen. Now in this class, we are going to discuss about the types of the conjunctions. कि conjunctions क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, how many types are there and how to use them. है ना? तो here we will discuss each and every type of the conjunctions today. Okay. So let's start without any delay. Let's start. Your just pay the attention, dear students, here on the okay. ओके सी कंजंक्शंस. सो अगर हम इनके टाइप्स की बात करें, सो बेसिकली देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द कंजंक्शंस. तीन तरह के टोटल कंजंक्शंस होते हैं हमारे. देयर आर द थ्री टाइप्स, मेन टाइप्स. फर्स्ट वन इज द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ओके, जो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ईच एंड एवरी टाइप वी विल बी डिस्कस हियर अबाउट द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. Second is the subordinating conjunctions, and the third type is the correlative conjunctions. Clear students? तो first में अगर हम देखें, जैसे कि this is our first coordinating conjunctions. Okay, as per as the name. अभी हम और डिटेल में देखेंगे with its proper definition क्या है. लेकिन यहाँ आपको एक एक्रोनिम आपको दिख रहा है. दिस इज द एक्रोनिम फैन बॉयज, है ना? तो आप याद कर सकते हो. यू कैन जस्ट ट्राई टू रिमाइंड दैट थिंग. फैन बॉयज, सिर्फ आपको एक एक्रोनिम याद करना है. इट मीन्स हाउ मेनी टाइप्स अंडर द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस? टोटल 7. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ओके, ये 1 से हमने स्टार्ट किया, तो टोटल 7 टाइप्स आर देयर अंडर द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. जैसे F, तो F स्टैंड्स फॉर. F का मतलब है यहाँ पे F से कौन सा कंजंक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है? फॉर. ठीक है. A से हमारा कौन सा कंजंक्शन है? A स्टैंड्स टू एंड. N से हमारा नॉर. ठीक है. B से बट. ओ जो है वो सिग्निफाई करता है और को. वाई इट सिग्निफाइज टू येट. एंड एस, एस सिग्निफाइज टू द सो. क्लियर? तो फैन बॉयज आपको याद रखना है. टोटल 7 कंजंक्शंस है इसमें, डिफरेंट डिफरेंट. तो ईच एंड एवरी टाइप ऑफ द कंजंक्शंस टुडे वी विल बी डिस्कस हियर. Clear? So what is the agenda for the today's class? We need to be understand basically what do we actually mean by the coordinating conjunctions. This is the main agenda for this class. Okay, the fanboys. And these all conjunctions है ना, जो भी है आपके फैन बॉयज में, जितने भी 7 types of conjunctions are included over here, these all are act as a coordinating conjunctions in the sentences. Clear? So this we will know how to use them, है ना? What is the meaning of them and how to use them properly in the sentence. We will be just discuss. Clear? Okay. Now second type जो है हमारा, मतलब conjunctions को we have basically classified into the 3 categories. Okay. First one is the coordinating. Second one is the subordinating conjunctions, and third is the correlative conjunctions. Clear? तो फर्स्ट में मैंने आपको एक अभी ब्रीफ डिस्कशन दे दिया है, व्हाट इज इट. ओके. सेकेंड में आप इतना समझ लीजिए कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, देयर आर सो मेनी, इट इंक्लूड्स द मेनी काइंड्स ऑफ द कंजंक्शंस. यहाँ पे आप देख रहे हैं आफ्टर, ऑल्दो, okay, as far as if, as long as soon as, है ना? यहाँ पे भी हम देखें every time, in order that, since, so that, then.
So there are the basically many types of the conjunctions comes under the subordinating conjunctions. बाकी हम डिटेल में भी इसको डिस्कस करेंगे when I will teach you particularly about the subordinating conjunctions. And the third one is the correlative conjunctions. Correlative conjunctions it means जब हम इन्हें पेयर में यूज करते हैं, ठीक है, लाइक आइदर और, ओके, नॉट ओनली बट, नाइदर नॉर, ठीक है, ये क्या है, पेयर में है, बोथ एंड, वेदर और, जस्ट एज सो, है ना। तो ये हमारे जो को रिलेटिव कंजंक्शन है जो कनेक्ट करते हैं, जो आपस में पेयर में होते हैं, वी हैव टू बी यूज देम इन द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू दैट ओनली, ठीक है, पेयर में ही आप इसे यूज भी करते हैं सेंटेंस में। तो ये आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन है। वी विल ऑल्सो डिस्कस ईच टाइप सेपरेटली इन माई अनदर क्लास। क्लियर? So today the main agenda is only about the coordinating conjunctions to understand properly what is the meaning of that and how to use it properly in the sentence. तो आज हम बात करने वाले हैं coordinating conjunctions के बारे में, and these both two further these types we will be discuss separately in my other class. ठीक है? Okay. So coordinating conjunctions. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? दीज आर यूज्ड टू कनेक्ट द वर्ड्स, फ्रेजेस एंड द क्लॉजेस ऑफ द इक्वल रैंक्स। मतलब ये हमारे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं बेसिकली दीज आर यूज्ड, ये यूज्ड होते हैं, क्यों यूज्ड होते हैं? टू कनेक्ट द वर्ड्स, ये वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। दे कनेक्ट द फ्रेजेस, फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं, एंड द क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक्स, और क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं इक्वल रैंक्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय द इक्वल रैंक्स? इट मींस इक्वल रैंक से आप ये समझ सकते हैं कि द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर जस्ट यूज्ड टू कनेक्ट द वर्ड्स को वर्ड्स से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब ये किसे कनेक्ट करते हैं? वर्ड्स को वर्ड्स से कनेक्ट करेंगे, वर्ड्स टू वर्ड्स। फ्रेजेस है ना, अब चाहे वो नाउन फ्रेजेस हो, वर्ब फ्रेजेस हो, एडवर्ब फ्रेजेस हो, तो फ्रेजेस टू फ्रेजेस मतलब एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से कनेक्ट करेंगे। फ्रेजेस को किससे कनेक्ट करेंगे? फ्रेजेस से। एंड क्लॉजेस को क्लॉजेस से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब क्लॉजेस में जितने भी टाइप्स होंगे, है ना, जितने भी टाइप्स होते हैं तो बेस्ड अपॉन दैट टाइप ये कनेक्ट करेंगे, ठीक है। क्लॉजेस को क्लॉजेस से कनेक्ट करते हैं। क्लियर? तो ये है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो हमारे या तो दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं आपस में, दो फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे वर्ब फ्रेज है तो वर्ब फ्रेज को ही कनेक्ट करेंगे, एडवर्ब फ्रेज है तो एडवर्ब फ्रेज को कनेक्ट करेंगे, नाउन फ्रेज है तो दूसरे नाउन फ्रेज से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और क्लॉजेस को क्लॉजेस से कनेक्ट करते हैं। क्लियर? द वर्ड्स फ्रेजेस, the words, phrases and the clauses connected with help of the coordinating conjunction। मतलब आप यहाँ पे जो भी coordinating conjunctions की help से आप connect कर रहे हो किसे? clauses को, phrases को और words को, आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वो कैसे होने चाहिए? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब आप यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। दिस इज योर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये बीच में आपने कनेक्ट किया, यहाँ पे एक सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे जो भी वर्ड है, जो भी वर्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे सपोज आप वर्ड्स वर्ड्स को वर्ड से कनेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट वर्ड है आपका और ये सेकंड वर्ड है, तो ये दोनों वर्ड है ना हम कनेक्ट कर पा रहे हैं विथ हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। जो भी आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आप यूज करते हो, फॉर हो गया, बट हो गया, सो हो गया, येट हो गया, है ना, फैन बॉयज में से जो अभी हमने एक्रोनिम देखा, बट दीज बोथ वर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट। लेकिन कंडीशन क्या है? ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब दे शुड नॉट बी डिपेंड अपॉन ईच अदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रुको अभी मैं एक एग्जाम्पल से और क्लियर करती हूँ आपको। इतना क्लियर है?
ओके, अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, सपोज, ओके दिस इज नॉट विजिबल, जस्ट आई चेंज माय कलर, जस्ट वेट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट वन एग्जांपल। शी लाइक्स पेंटिंग एंड सिंगिंग। ठीक है, शी लाइक्स पेंटिंग एंड सिंगिंग। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एंड है, दिस एंड यूज्ड हियर एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये हमने यहाँ पे इसको यूज किया है, ठीक है, एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो ये एक वर्ड है आपका पेंटिंग, दिस इज योर फर्स्ट वर्ड, एंड सिंगिंग दिस इज योर सेकेंड वर्ड। क्लियर? तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं आपस में, शी लाइक्स द पेंटिंग एंड सिंगिंग, वो पेंटिंग भी पसंद करती है और सिंगिंग भी पसंद करती है, मतलब उसे दोनों चीजें पसंद है, पेंटिंग एज वेल एज सिंगिंग बोथ। और इन दोनों वर्ड्स को मैंने किससे कनेक्ट किया है? एंड से। सो एंड एक्ट एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ओवर हियर। बट one thing you have to be noticed students according to this definition, independent of each other, ये जो दोनों वर्ड्स हैं पेंटिंग एंड सिंगिंग, आपस में ये कैसे हैं आप देख सकते हो, बोथ आर इंडिपेंडेंट वर्ड्स। इंडिपेंडेंट इसलिए, पेंटिंग इज अ डिफरेंट थिंग, है ना, एंड सिंगिंग इज अ डिफरेंट थिंग, देयर शुड नॉट बी एनी कनेक्शन, मतलब लाइक ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसे पेंटिंग पसंद है, द पर्सन हु लाइक्स द पेंटिंग, इट इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी फॉर दैट कि उसे सिंगिंग भी पसंद होना ही चाहिए, या इट्स नॉट बी कंपल्सरी कि ये रूल है पर्टिकुलर कि जो भी सिंगिंग करता है या जिसे भी सिंगिंग पसंद है उसे पेंटिंग भी सीखना ही होगा, उसे पेंटिंग भी आना ही चाहिए, पेंटिंग भी उसे पसंद होना ही चाहिए। नो, सो एज देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ द रूल, है ना, सो बोथ दीज वर्ड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दोनों ये वर्ड्स कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे जो हमने एंड यूज किया है, ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और कंडीशन जो है हमारी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो ये दोनों वर्ड्स कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? है ना। अगर ऐसे ही मैं आपको सेकेंड एग्जांपल दूं, शी विल ऑर्डर टी और द कॉफी, आप कहीं जाते हैं, यू गो समवेयर, यू वेंट समवेयर इन एनी रेस्टोरेंट, और आपने ऑर्डर किया, शी, और मतलब आप आपके फ्रेंड के साथ गए, एंड सपोज योर फ्रेंड ऑर्डर टी और कॉफी। ठीक है, तो हम जो है कभी कॉफी ऑफर करते हैं, कभी टी ऑफर करते हैं। सो अगर मैं एक पर्टिकुलर सेंटेंस लूं कि शी विल ऑर्डर द टी और कॉफी, शी विल ऑर्डर टी और कॉफी, तो टी दिस इज योर फर्स्ट वर्ड, कॉफी इज योर सेकेंड वर्ड, एंड इसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है विथ हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट इज और, ये भी एक्ट करता है एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ही तरह। तो इट इज नॉट बी मैंडेटरी कि जो टी ऑफर करेगा रेस्टोरेंट में उसे कॉफी भी ऑफर करनी ही होगी, इट्स नॉट बी कंपल्सरी। ठीक है, इट्स अप टू देम, वो उस पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसको टी प्रेफर करना है या कॉफी प्रेफर करना है ना। ये भी कंपलसरी नहीं है कि जो कॉफी ऑर्डर करेगा उसे टी भी पीनी ही पड़ेगी। ओके, तो हम जहीं कहाँ भी, मतलब हम अगर कहीं भी जाते हैं, इफ वी गो समवेयर, तो हम बोलते हैं ना कि ठीक है, आई वुड लाइक टू हैव द वन कॉफी प्लीज, आई वुड लाइक टू हैव द वन कप ऑफ द टी प्लीज। तो बोथ दीज वर्ड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्लियर? सो अब आपको इस डेफिनेशन का मीनिंग क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके, सो जो भी हम वर्ड्स या फ्रेजेस या क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं विद हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कोई डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। क्लियर? ओके, सो दिस वाज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ आवर डेफिनेशन। ओके, एज यू कैन सी हियर फैन बॉयज। ठीक है, तो मैंने फैन बॉयज जो अभी हमने डिस्कस किया उसी को यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मतलब आपको इजी जाए थोड़ा सा लर्न करने के लिए। दिस इज योर मेन एक्रोनिम फैन बॉयज। एफ सिग्निफाइज टू द फॉर, ए सिग्निफाइज टू द एंड, ठीक है, एन फॉर द नॉर, बी स्टैंड्स फॉर बट, ओ स्टैंड्स फॉर और, वाई रिप्रेजेंट्स टू द एट, एंड एस फॉर द सो। ठीक है, तो these all act as a coordinating conjunctions in the sentences. Now we will see here कि what is the meaning of the for का क्या meaning है and how to be use that in the sentence.
Similarly, we will be see what is the meaning of the and how to be use it in the sentence, है ना? What is the use of it? Similarly, we will be discuss each and every type one by one. Clear कि nor का क्या meaning होता है और इसे कब हमें sentence में use करना है, how to use it properly. Clear? Okay, so now first we will be come ahead towards the coordinating conjunctions. First category, that is the for. For हमें कब use करना होता है? So for is basically used to explain why. Okay, हम for कब use करते हैं? For मतलब हिंदी में अगर मैं कहूँ किस लिए, ठीक है, किस लिए? फॉर इज यूज टू एक्सप्लेन वाई, मतलब ये हमें रीजन बताता है। वाई का क्वेश्चन जो वाई है, आपने पूछा है कि क्यों, तो उसका आंसर बताता है। इट प्रोवाइड्स द रीजन, इट प्रोवाइड्स द आंसर। इट इज यूज एज द कंजंक्शन फॉर द पर्पस और रीजन। मतलब जो भी एक्शन परफॉर्म हो रही है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, है ना? तो उसका क्या रीजन है, तो ये हमें फॉर बताएगा। फॉर, ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो, इफ यू आर लिसनिंग दिस लेक्चर, इफ यू आर डूइंग योर स्टडीज प्रॉपरली, तो वाई, क्यों कर रहे हो आप, है ना? तो यू विल गिव द रीजन, इट प्रोवाइड द रीजन बाय विद हेल्प ऑफ द कंजंक्शन फॉर। मतलब अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, उसका रीजन क्या है, ओके, ये हमें फॉर बताता है। मतलब इट डजेंट मीन कि मैंने आपसे कहा कि ठीक है जो भी कर रहे हैं हर सिचुएशन में फॉर को यूज कर लेना है। नो, इट्स नॉट बी लाइक दैट। अगर वेन एवर यू कनेक्ट द टू वर्ड्स, ओके, टू phrases, two phrases or two clauses. Okay, whenever you want to connect the two phrases, two words, two phrases, and the two clauses with each other and provide the reason. Okay, जब भी आपको दो words को आपस में connect करना है, combine करना है, दो phrases को combine करना है या दो clauses को combine करना है, मतलब first part जो है आपका sentence का, ठीक है, उसमें कोई action perform हो रही है और सेकंड पार्ट में उसका रीजन गिवन है कि वो एक्शन क्यों परफॉर्म हो रही है, वो काम क्यों परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो आप जब भी इनको आपस में कनेक्ट कर रहे हो, वर्ड्स टू वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे हो, फ्रेजेस को फ्रेजेस से कनेक्ट कर रहे हो, क्लॉजेस को क्लॉजेस से कनेक्ट कर रहे हो, और आप रीजन भी प्रोवाइड कर रहे हो कि आपने ऐसा जो भी किया वो क्यों किया, सो आप यहाँ पे फॉर को यूज करोगे एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर? इन दैट केस ओनली यू हैव टू यूज द फॉर। क्लियर? So here we will provide the reason with help of the for. ठीक है, ये आपका एक्शन जो हो रही है, this is the first part of your sentence and this is your second part of the sentence. So this was the basic example, basic introduction about it. Now we will be just look at the some examples, students. We will go through the some examples, so things will be more clear to you. Okay. The first, look at the first example. Rohit drank some water for he was thirsty. अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं, जैसे अर्लियर द सेंटेंस वाज रोहित ड्रैंक सम वाटर, है ना? दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस कि रोहित ड्रैंक सम वाटर, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। रोहित ने पानी पिया, रोहित ने पानी पिया, रोहित यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्या एक्शन परफॉर्म हो रही है यहाँ पे? ही ड्रैंक सम वाटर, उसने पानी पिया। एंड योर सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज दैट ही वॉज थर्स्टी, उसे प्यास लगी थी। क्लियर? तो वो मतलब उसे प्यास लगी थी, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ योर सेंटेंस। तो उसने पानी क्यों पिया, रीजन क्या था यहाँ पे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? What is the reason? The reason is that he was thirsty. उसे प्यास लगी थी। तो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्शन परफॉर्म हो रही है और सेकंड पार्ट में उसका रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी? दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर फॉर, क्योंकि फॉर हमें क्या बता रहा है? रीजन प्रोवाइड कर रहा है, रीजन बता रहा है। तो अभी मेरा जो सेंटेंस हो गया है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट एक्चुअली? रोहित ड्रैंक सम वाटर, रोहित ने पानी पिया क्योंकि ही वॉज थर्स्टी, क्योंकि उसे प्यास लगी थी।
है ना। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि रोहित ने पानी पिया, क्यों? क्योंकि उसको प्यास लगी थी। रोहित वॉज थर्स्टी, ही वॉज थर्स्टी। क्लियर? तो हियर इन द सेकेंड पार्ट इट प्रोवाइड्स द रीजन। क्लियर? Okay. Second, I go to dance class. I go to dance class. This is your first sentence, first part. I love to dance. सपोज मेरे यहाँ कोई मेरे रिलेटिव आते हैं एंड दे आस्क टू मी कि व्हाट जनरली यू डू, आप क्या करते हो? तो मैंने क्या कहा उनसे कि आई गो टू द डांस क्लास फॉर आई लव टू डांस। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में आप देखोगे कि एक्शन परफॉर्म हो रही है, मैं डांस क्लास जाती हूँ, लेकिन क्यों जाती हूँ? क्या रीजन है मुझे जाने का वहां पे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि मैं डांस क्लास जाती हूँ? तो सेकेंड सेंटेंस में, सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में यू कैन सी हियर, यू कैन जस्ट नोटिस दैट रीजन प्रोवाइड हो रहा है, आई लव टू डांस। मैंने बोल दिया उनसे कि हाँ ठीक है, मुझे डांस बहुत पसंद है, आई जस्ट लव टू डांस, दैट्स वाई आई गो टू द डांस क्लासेस। क्लियर? तो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हियर, इन दोनों फर्स्ट और सेकेंड पार्ट्स को मैंने यहाँ पे कंबाइन किया है विद हेल्प ऑफ द कनेक्टर दैट इज द फॉर विच एक्ट एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका रीजन आपने प्रोवाइड कर दिया। अब अगर एक बार मैंने किसी को रीजन प्रोवाइड कर दिया है तो वो सेकंड पर्सन फिर मुझसे नहीं पूछेगा कि ठीक है तुम क्यों जाते हो डांस क्लास को, बिकॉज ऑलरेडी आई told him, I just clarify कि I go to the dance class for I love to dance. Clear? तो अभी आपको for का यूज समझ में आ रहा है कि how to use it properly whenever in the first part of the sentence you perform any action and in the second part of the sentence if there is any reason behind it. Okay? तो आप यहाँ पे for use करते हो whenever you connect to the words to words, phrases to phrases, clauses to clauses. Okay? And you have to given the reason also with that ki why did you do that. Okay, in that case we will use the for as a coordinating conjunction. I cannot attend, I cannot attend the meeting. यहाँ पे आप एक वर्ड और ऐड कर लीजिए, द मीटिंग। आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सका। आई एम अनवेल, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो फॉर, ठीक है, फॉर मैंने यहाँ पे अगेन इन दोनों सेंटेंस को आपस में कनेक्ट किया है, जिसमें फर्स्ट में मैंने बताया है कि ठीक है मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। फॉर आई एम अनवेल, क्योंकि मैं कैसा हूं, मैं अनवेल हूं, मैं ठीक नहीं हूं, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। ओके, सो दिस इज योर रीजन एंड फर्स्ट पार्ट इज योर अबाउट द एक्शन। क्लियर? ही हैज टू फाइंड अ न्यू जॉब, उसे न्यू जॉब फाइंड आउट करनी होगी। फॉर ही इज अनएम्प्लॉयड, फॉर ही इज अनएम्प्लॉयड, क्योंकि वो कैसा है, वो अनएम्प्लॉयड है। सो दिस इज अगेन द रीजन। I brought an umbrella for it might rain later. अब आप यहाँ देखोगे I brought an umbrella. Speaker is signifies here कि speaker should bring the umbrella. Speaker should carry the umbrella with himself or herself, whatever it may be. Because in the second में reason क्या है? It might rain later. Because in the second part of the sentence it signifies the reason there is a possibility of the rain. रेन की पॉसिबिलिटी शो हो रही है कि रेन हो सकती है ना, इट माइट रेन लेटर, बारिश हो सकती है। तो आप यहाँ पे देखोगे फॉर को मैंने अगेन यहाँ पे यूज किया एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर? दिस इज द, इट प्रोवाइड्स द रीजन। Clear? So, is there any confusion? So you can ask. So using the conjunction for, it indicates a relationship between the two many clauses by indicating the one clause is the reason that other is happening. अगर कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है ना, ये हमें इसका रीजन बताता है। ठीक है, सेकेंड क्लॉज में या सेकेंड पार्ट ऑफ द जो भी आपका सेंटेंस है, आप जो भी क्लॉजेस को क्लॉजेस से कनेक्ट करते हैं या वर्ड्स टू कनेक्ट करते हैं या फ्रेजेस को फ्रेजेस से कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? So this was all about the use of the for. Okay, now we will come ahead towards our second category, that is the and. ठीक है, and का मतलब क्या होता है? और, हिंदी में, है ना। and मतलब और, and is used to join the two words. तो basically and हम use करते हैं to join the two words, two phrases and clauses to join the similar idea, to join the different ideas. मतलब अगर मुझे दो ideas को आपस में join करना है तो मैं क्या use करूंगी? I will add the two ideas with help of the and. ठीक है, तो and indicates the additional informations of equal weights to the information provided in the first clause. Okay,
जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स लुक एट द सम एग्जाम्पल्स। शी लाइक्स टू ड्रिंक टी एंड कॉफी। शी लाइक्स टू ड्रिंक, अगर सपोज मेरी कोई फ्रेंड आती है मेरे घर पे एंड माई मदर जस्ट आस्क कि बेटा व्हाट डू यू लाइक टू प्रिफर, आप क्या लेना पसंद करोगे, है ना। तो मैं कहूंगी कि मम्मी इसे टी भी लेना, ये चाय भी पीती है और इसे कॉफी भी पसंद है, मतलब इसे चाय भी पीती है, ये इसे चाय लेना भी पसंद है और इसे कॉफी भी प्रिफर करती है, इसे कॉफी भी बहुत पसंद है, ठीक है। तो शी लाइक्स टू ड्रिंक टी, कॉफी एंड कॉफी, दिस इज द फर्स्ट वर्ड एंड दिस इज द सेकेंड वर्ड, है ना। आप देखोगे ये दोनों जो वर्ड्स हैं आपस में, एज आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द प्रीवियस एग्जांपल, बोथ आर इंडिपेंडेंट, है ना, दोनों इंडिपेंडेंट है। देयर इज नॉट बी मैंडेटरी, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि जो टी पिएगा वो कॉफी भी पिएगा ही पिएगा, दैट इज अ मैंडेटरी रूल, नो। तो ये दोनों वर्ड्स को मैंने कनेक्ट किया है यहाँ पे एंड, कि शी लाइक्स टू ड्रिंक, उसे चाय भी पीना पसंद है और कॉफी भी पसंद है, तो that's why we have used here and. They play cricket and basketball. Suppose in the open campus, in the open ground, there were some students were there and मैं देख रही हूँ कि one day they play cricket. एक दिन वो क्रिकेट खेलते हैं, they play cricket, and second day I just observed they were playing the basketball. Second day मैंने देखा कि वो लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं, they were playing the basketball. This is the first and this is the second word. So again I have connected this both words with help of the and conjunction, मैंने and से इसको यहाँ पे कनेक्ट किया है। रोहित हैड, ठीक है, तो हैड का यूज आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब टू ज्वाइन द टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस और टू ज्वाइन द सिमिलर आइडियाज, क्लियर। रोहित हैड द केक एंड चिप्स। रोहित हैड, अब सपोज ये सेंटेंस है ऐसे कि रोहित हैड केक्स एंड रोहित हैड चिप्स। तो रोहित हैड, आप देखोगे ये कॉमन है, रोहित ने रोहित के पास थे या रोहित खा चुका है क्या, केक्स और चिप्स। केक्स भी खाया रोहित ने, रोहित के पास केक भी था और चिप्स भी थे, ठीक है। दिस इज सिंगुलर, केक, ओनली वन केक, ओके। तो रोहित हैड द केक एंड चिप्स, दिस इज योर फर्स्ट वर्ड, दिस इज योर सेकेंड वर्ड, तो आई वुड से रोहित हैड केक and chips, clear। So and again act as a coordinating conjunction। they like cooking and eating, उसे कुकिंग भी पसंद है, उन्हें कुकिंग भी पसंद है और ईटिंग भी पसंद है ना। So again these two things we have used here, connect here with help of the coordinating conjunction, that is and, clear। तो अभी आपको and का मीनिंग समझ में आ गया स्टूडेंट्स, है ना। ऐसे आप और भी कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस, क्लियर। Okay, now we will be move ahead. Coordinating conjunction, that is nor. Again, the third category है ना, जिसमें हम बात करेंगे nor. What is the meaning of the nor and how to be use it properly in the sentence? See, nor connect the two clauses that have the negative modifiers, or we can say that first of all we will, if we see the proper meaning of it, so nor means होता है and not, ठीक है। and का जैसे आपने देखा हम यूज करते हैं टू ज्वाइन द सिमिलर आइडियाज, ओके। और उसमें आपने यहाँ पे क्या लगा दिया है, नॉट लगा दिया है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे जब नॉर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो नॉर मतलब हम कब कहते हैं, इट मीन्स निगेटिव, है ना, नो, ओके। तो आपको एंड नॉट अगर मतलब नो मतलब नॉर मीन्स होता है एंड नॉट, ठीक है। तो और नहीं, मुझे ये यूज नहीं करना है, एंड नॉट में यूज नहीं करूंगी, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया एक ही वर्ड में, दैट इज नॉर। नॉर इज यूज टू ज्वाइन द सेकेंड निगेटिव आइडियाज। हम नॉर का कब यूज करते हैं, टू ज्वाइन द सेकेंड निगेटिव आइडियाज विथ द निगेटिव आइडिया इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब आपका जो फर्स्ट पार्ट है आपका सेंटेंस में, जो भी निगेटिव आइडिया उसमें गिवन है ना, और सेकेंड पार्ट जो है सेंटेंस में उसमें भी निगेटिव आइडिया ही बोला है, तो उन दोनों निगेटिव आइडियाज को आप कनेक्ट करोगे विथ हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दैट इज नॉर, क्लियर। तो नॉर अगर मैं बोलूं मतलब एंड नॉट, मतलब दोनों आइडियाज को हमें यहाँ पे निगेटिव में ही बताना है। हम दोनों आइडियाज की बात कर रहे हैं, सेंटेंस में आपको दो आइडियाज गिवन रहेंगे, फर्स्ट आइडिया एंड सेकेंड आइडिया, एंड बोथ जो भी दोनों आइडिया है यू जस्ट मॉडिफाई, जस्ट मतलब आप निगेटिव टर्म्स में उन्हें आप बता रहे हो, ठीक है। दोनों आइडियाज को निगेटिव वे में आप बता रहे हो, नॉट दिस एंड नॉट दैट, है ना। अगर मैं ये कह रही हूँ फॉर एग्जाम्पल कि नॉट दिस
एंड नॉट दैट, नॉट दिस, ये नहीं और ये भी नहीं, है ना, एंड नॉट दैट। तो नॉट दिस एंड नॉट दैट, तो जब सेंटेंस में हमें एंड नॉट को मीनिंग देना है तो हम इसे यूज करते हैं नॉर। अगर मुझे ये कहना है ये नहीं और ये भी नहीं, तो सिंपली मैं क्या कहूंगी इसको यहाँ पे, नॉर। मतलब सिंपली जब हमें सेंटेंस में एंड नॉट को यूज करना है, ठीक है, तो हम एंड नॉट को रिप्लेस करके हम सिर्फ वन वर्ड में हम अपनी बात कहेंगे, दैट इज नॉर। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने फर्स्ट सेंटेंस में आपको बताऊं, शी डिड नॉट कॉल हर फ्रेंड्स नॉर राइट अ लेटर टू देम। तो हियर द फर्स्ट सेंटेंस इज शी डिड नॉट कॉल हर फ्रेंड्स, उसने अपने फ्रेंड्स को कॉल नहीं किया या वो अपने फ्रेंड्स को कॉल नहीं करती है। दिस इज द वन निगेटिव कमेंट अबाउट अ गर्ल। वो गर्ल कोई भी हो सकती है, जो भी मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट है शी मतलब हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द वन गर्ल। So the first negative comment about her is that she didn't call her friends. वो उसके फ्रेंड्स को कॉल नहीं करती है। एंड सेकेंड पार्ट इज दैट राइट अ लेटर टू देम, और ना ही वो उन्हें लेटर लिखती है। तो वो ये भी नहीं करती है, ना तो वो कॉल करती है और ना ही मतलब एंड नॉट। तो एंड नॉट को रिप्लेस करके मैंने क्या यूज किया है यहाँ पे, नॉर। मतलब एंड नॉट आप यूज नहीं करोगे, एंड नॉट के प्लेस पे आप क्या बोलोगे, नॉर राइट अ लेटर टू देम, और ना ही वो उन्हें लेटर लिखती है। सो बोथ नेगेटिव आइडियाज are here about the one girl, that is my subject she, and both these negative ideas I had connected over here with help of the nor. Clear? Okay, ये वन बाय मिस्टेक ये टाइप हो गया था, है ना, ये ओनली दे लिखा है, ओनली वन टी इज कंसिडर हियर। दे डज नॉट ईट बटर, दे डजंट ईट बटर नॉर डज दे ड्रिंक मिल्क। अब मैं ये बता रही हूँ कि ना ही वो बटर खाते हैं और ना ही वो मिल्क पीते हैं। तो दे डज नॉट ईट बटर, दिस इज योर फर्स्ट निगेटिव आइडिया। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट निगेटिव आइडिया अबाउट समवन, अबाउट देम। ठीक है, दे मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो दे डज नॉट ईट बटर, वो बटर नहीं खाते हैं। और अगर सेकंड सेकंड में मैं बोलूंगी कि हाँ एंड वो ड्रिंक मतलब वो मिल्क भी ड्रिंक नहीं करते हैं, वो दूध भी नहीं पीते हैं, है ना, तो ना ही वो बटर नहीं खाते हैं और ना ही एंड नॉट, है ना, दे ड्रिंक मिल्क। तो एंड नॉट और ना ही, तो उसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, नॉर से। नॉर डज दे ड्रिंक मिल्क, और ना ही वो ड्रिंक मिल्क ड्रिंक करते हैं और ना ही वो मिल्क लेते हैं। क्लियर? सो मतलब समझ में आया आपको? सो हियर विथ हेल्प ऑफ द नॉर व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम दोनों आइडियाज को निगेटिव वे में बता रहे हैं। क्लियर? शी डज नॉट लाइक पिज्जा नॉर डज शी इंजॉय बर्गर्स, उसको पिज्जा भी नहीं पसंद है, शी डजंट लाइक द पिज्जा, और ना ही मतलब एंड नॉट। तो एंड नॉट तो आपको यूज नहीं करना है, इन दैट केस यू हैव प्रिफर नॉर। तो नॉर इज एक्टिंग एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। शी डजंट लाइक पिज्जा, उसे पिज्जा नहीं पसंद है, वो पिज्जा पसंद नहीं करती है, और ना ही शी इंजॉय बर्गर्स, और ना ही वो बर्गर इंजॉय करती है। मतलब अगेन द निगेटिव कमेंट, बोथ टू निगेटिव आइडियाज ओवर हियर इन द सेंटेंस, और हम उन दोनों निगेटिव आइडियाज को ऐड कर रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द नॉट। क्लियर? इट मीन्स एंड नॉट। शी डिड नॉट स्लीप अर्ली लास्ट नाइट, ठीक है, शी डिड नॉट स्लीप अर्ली लास्ट नाइट नॉर डिड ही स्टडी फॉर हिज एग्जाम। मतलब फर्स्ट निगेटिव आइडिया इट्स अबाउट कि वो लास्ट नाइट जल्दी नहीं सो पाई, है ना, और उसने पढ़ाई भी नहीं की। और नॉर डिड ही स्टडी फॉर हिज एग्जाम। ठीक है, आप इसको ही कर लो। ही डिड नॉट स्लीप अर्ली लास्ट नाइट, वो लास्ट नाइट जल्दी नहीं सोया। नॉर डिड ही स्टडी फॉर हिज एग्जाम, और उसने एग्जाम के लिए पढ़ाई भी नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पे और ना ही मतलब दोनों निगेटिव आइडिया, दोनों निगेटिव बातें उसके बारे में कही गई है कि ही डिड नॉट स्लीप अर्ली लास्ट नाइट, वो जल्दी नहीं सो पाया, है ना, लास्ट नाइट को, और उसने पढ़ाई भी नहीं की है इसके साथ साथ। तो इन दोनों निगेटिव आइडियाज को मैंने यहाँ पे कमेंट किया है नॉर से। क्लियर? कनेक्ट किया है। तो नॉर हमारा कब हमें कनेक्ट करना है, कैसे यूज करना है सेंटेंस में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, ऑल दिस थिंग्स वी हैव just discussed over here with lots of example. Okay, बाकी आप you just keep practicing students, and further if you have any doubt so you can ask. Okay, now we will look ahead the next, that is the but. अब हम आते हैं but, कि हमें but कब यूज करना है, हाउ टू यूज इट, है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट।
तो बट इज यूज्ड बेसिकली टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया। अगर मैं कोई एक बात बोल रही हूँ और उस बात के बाद मैंने कोई अपोजिट स्टेटमेंट दिया, ठीक है, कोई अपोजिट में बात कर रही हूँ, उसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट बात कर रही हूँ, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट इंफॉर्मेशन में ऐड कर रही हूँ, इन दैट केस वी विल यूज द बट। बट मतलब जब आपको when you want to add the some contrasting information or you just talk about in opposite way, है ना, अगर मैंने कोई बात कही आपसे और फिर मैं जस्ट उसी के बाद बिल्कुल उसके अपोजिट वे में मैं बात करती हूँ या मैं कोई कॉन्ट्रास्ट इंफॉर्मेशन ऐड करती हूँ, उस केस में हम क्या यूज करते हैं, बट, है ना। बट का क्या होता है हिंदी में मीनिंग अगर हम देखें, लेकिन। So, but is used to introduce a contrasting idea. But is only the conjunction when the parts of the sentence on either side express the opposite idea. बट हमें यूज करना है, बट इज अ कंजंक्शन, एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ये हमारे पार्ट्स ऑफ जो भी हमारे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हमारा सेंटेंस का गिवन है, तो फर्स्ट पार्ट में अगर आपने कुछ बोला है और सेकंड पार्ट में ऑन आइदर साइड इफ यू प्रोवाइड एनी अपोजिट आइडिया और कॉन्ट्रास्ट इंफॉर्मेशन, इन दैट केस आप क्या लगाएंगे बीच में, बट। क्लियर? जैसे लेट्स टेक द सम एग्जांपल, मतलब एक आइडिया सिंपल से अगर मैं कहूँ इन अ वेरी नॉर्मल लैंग्वेज, तो एक आइडिया दूसरे आइडिया से कैसा है, कॉन्ट्रास्ट है, बिल्कुल अपोजिट है। द वन आइडिया इज जस्ट कॉन्ट्रास्ट विद एन अनदर आइडिया। क्लियर? जैसे लेट्स लुक एन एग्जांपल, दे आर पुअर, है ना। अगर मान लो मैं किसी फैमिली के बारे में मैं डिस्कशन कर रही हूँ कि यार दे आर वेरी पुअर, मतलब दे आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। ओके, अगर मैं अपनी मदर को या अपने फ्रेंड से कुछ डिस्कशन कर रही हूँ किसी फैमिली के बारे में और मैंने कहा कि दे आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, इट मीन्स क्या हुआ, दे आर पुअर बट बट ऑनेस्ट। लेकिन मैं बोलूंगी लेकिन गरीब होते हुए भी उनमें एक बात बहुत अच्छी है ना, वो एक बात क्या है बहुत अच्छी, कि वो ऑनेस्ट है। लेकिन यार वो ईमानदार बहुत है, ऑनेस्ट बहुत है। सो फर्स्ट पार्ट में मैंने कहा दे आर नॉट फाइनेंशियल स्टेबल, दे आर पुअर, लेकिन सेकंड में मैं उसी के अपोजिट आइडिया बता रही हूँ, अपोजिट एक कॉन्ट्रास्ट इंफॉर्मेशन ऐड कर रही हूँ, लेकिन वो ऑनेस्ट बहुत है। ठीक है, लेकिन वो बहुत ऑनेस्ट है। तो यहाँ पे लेकिन जो वर्ड है वो हम ऐड करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे विद हेल्प ऑफ द कंजंक्शन दैट इज बट। क्लियर? आई लाइक एप्पल्स, मुझे एप्पल्स पसंद है, बट नॉट बनानास। ठीक है, बट आई लाइक एप्पल्स मतलब आपने यहाँ पे एक पॉजिटिव रिमार्क दिया है एप्पल्स को लेके, लेकिन आप निगेटिव रिमार्क दे रहे हैं बनानास को लेके कि यू डोंट लाइक द बनानास। क्लियर? सो आप यहाँ पे बट यूज करोगे। क्लियर? आई वॉन्ट टू अटेंड द पार्टी, आई वॉन्ट टू अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी अटेंड करना चाहता था, फिर लेकिन बट आई हैव माई एग्जाम टूडे, लेकिन आज मेरा एग्जाम है, सो दैट्स वाई यू कुड नॉट बी एबल टू अटेंड द पार्टी। क्लियर? बट आई हैव माई एग्जाम टूडे। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट में आप बहुत ही एक्साइटेड हैं, यू आर वेरी क्यूरियस टू अटेंड द पार्टी, बट सेकंड में आप उसी का ही जस्ट अपोजिट बात कर रहे हो कि आई हैव माई एग्जाम टूडे, है ना, तो इसलिए आप नहीं कर पाएंगे, आप पार्टी अटेंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन, है ना, तो जो लेकिन है वो हमने ऐड किया है यहाँ पे बट से। क्लियर? दे एट पिज्जा बट आई एट राइस। क्लियर? सो अगेन यू कैन लुक हियर, यू कैन जस्ट नोटिस हियर बट हमने ऐड किया है यहाँ पे, कनेक्ट कर रहे हैं बट की हेल्प से। अगेन द टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस, the both negative, the both ideas, the first idea they ate the pizza, उन्होंने पिज्जा खाया, but the second idea is just opposite and contrast information, I ate rice. Clear? So now it is clear to everyone ki what is the meaning of the but and when and how you have to be use it in the sentences properly. The fabric was thin but the color was strong. Just read the sentence very carefully. Suppose you have ordered any online dress, आपने order की है and that online dress आपके घर पे भी आ जाती है ना, और जब आप उसे देखते हैं एंड जस्ट योर मदर आस्क कि हाउ इट इज, कैसी है ये, डू यू लाइक इट, तो आप क्या बोलोगे, द फैब्रिक वॉज थिन। द फैब्रिक वॉज थिन, जो कपड़ा है उस ड्रेस का, उस ऑनलाइन ड्रेस का, वो बहुत पतला है ना, वो पतला है, वॉज थिन, इट वॉज थिन। बट लेकिन द कलर वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसका कलर कैसा है, कलर बहुत अच्छा है, कलर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो द फर्स्ट आइडिया ये था कि फैब्रिक वॉज थिन, बट द सेकेंड आइडिया इज जस्ट अपोजिट एंड कॉन्ट्रास्ट इंफॉर्मेशन। ओके, so that's why we have used here but. The fabric was thin, but the color was strong. So this was about all the information
with about the but. ओके, अब हम और का यूज देखेंगे कि हमें और कब यूज करना है सेंटेंस में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? और इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन अल्टरनेटिव और अ चॉइस बिटवीन द टू थिंग्स. और हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस एन अल्टरनेटिव और अ चॉइस बिटवीन टू थिंग्स व्हेन यू हैव द चॉइसेस. है ना, आपको दो थिंग्स है, दो ऑप्शंस है, और उन दोनों ऑप्शंस में से यू हैव द सपोज टू अल्टरनेटिव्स, टू चॉइसेस, टू थिंग्स, और आपको उसमें से कुछ एक सिलेक्ट करना है. इन दैट केस यू विल यूज द और. है ना, जैसे सपोज वन स्टूडेंट केम, आपको आपके पास कोई स्टूडेंट आता है या आपके यहाँ कोई रिलेटिव आते हैं और वो पूछ रहे हैं कि आपने क्या लिया है ना. तो आप बोलोगे, मतलब दो ऑप्शंस हैं. तो अगर उन्होंने आपका रिजल्ट देखा और वो बोलेंगे कि यू हैव द वेरी गुड मार्क्स इन द मैथमेटिक्स एंड इन द साइंस साइंस स्ट्रीम, तो वो आपको दो ऑप्शंस देंगे कि आइदर यू कैन टेक द साइंस स्ट्रीम, आप बायोलॉजी ले लो एंड यू विल बिकम द डॉक्टर, बट you have the good marks in the mathematics as well. So you can choose the mathematics and you can go uh, towards just move towards through the IIT. आप IITian बन जाओ. आप IIT से mathematics से you can become the engineer. So here you have the two choices. Either you can take the science or you can choose the mathematics and to become an engineer, IIT engineer, and you can choose the biology as a main stream in the science and you can become a doctor. तो आपके पास यहाँ पे choices हैं, two things है, दो option है. उन दोनों options में से, दोनों alternative में से आपको choose करना है. So in that case we will use coordinating conjunction, that is or. सर कर ले कंटिन्यू कि बहुत लंबा हो गया. वो आया था क्या बीच में? नहीं, अभी तो नहीं आया. तो एक काम करो, इसमें बोल दो कि एक छोटी सी यहाँ से अपन एक काम करेंगे और से नेक्स्ट टाइम से शुरू कर लेंगे. हाँ, तो आप एक काम करो, मैं ये क्लोज बोल कर दो, देती हूँ नहीं अब. क्लोज मत करो, आप ये बोल दो कि इसके आगे का हाँ, वीडियो हम मतलब अगली क्लास में एक देखेंगे. पार्ट को देख. सर फिर मैंने इस पे नहीं, मैं यहाँ से शुरू करूंगी ना, तो यहाँ पे क्लोज कर दिया, ये समझा दिया, अब इसी पे कर देती हूँ, प्रीवियस स्लाइड पे क्लोज करती अब हूँ. बोल दो ना. Okay, students. So I think this was is enough for today. Otherwise, the class will be too long and it will be difficult for you to understand many things. So rest of the coordinating conjunctions, we will be discussed in our next part, in our next class. Okay. So I think this will be enough for today, and we will be meet once again in our next session, in our next class, in which we will be discuss our three remaining coordinating conjunctions. Okay. So now I am going and I'm signing off. Thank you. Have a nice day and just keep practicing and keep learning. Thank you, everyone.